Hello everyone. Today I, Faizia Khidwai, welcome you all to Balajee online classes. Today I am going to explain the remaining part of chapter number 2, the establishment of company power of class 8th history. So the topic is expansion of British Empire. As we have already discussed that by now Britishers have successfully acquired many territories of India, and one such was the rich province of Bengal, and also they were able to eliminate all their foreign rivals. So now basically they were ready to acquire the remaining other territories of India. The first war that was fought in this direction was the Anglo-Mysore Wars. 4 Anglo-Mysore Wars were fought between 1766 to 99. क्या हुआ कि जो एंग्लो-मैसूर वॉर्स थी इसमें 4 वॉर हुई और इसमें बेसिकली जो फर्स्ट 2 वॉर्स हैं दैट वर फॉट बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग्स एंड हैदर अली. ही वॉज द नवाब ऑफ मैसूर. और इन दोनों वॉर में नवाब हैदर अली was defeated, and after this 2 more wars were fought between Warren Hastings and this time Tipu, the son of the Hyder Ali. But what happened in these 2 wars also, Tipu was defeated and killed. कैसे हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद से हाथ मिला लिया, मीन्स दे बोथ केम टुगेदर, और इस वॉर में निज़ाम ने पूरा सपोर्ट किया. एंड ऑल्सो जो मराठास थे दे वर न्यूट्रल. उनकी जो न्यूट्रलिटी थी वो भी एक रीज़न थी जिसमें ब्रिटिश को एडवांटेज मिला, एंड ब्रिटिश वॉज सक्सेसफुल इन कॉन्करिंग दिस स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो. देन Anglo-Maratha Wars. Now the company also fought 3 wars with Marathas. Or basically the Maratha Sardars were not united, and that was the advantage that the company took, and the company was successful in striking them and dethroning the Peshwa and also depose him off from his pension. Also his territories were annexed to the province of Bombay, and later on the Maratha chiefs जिसमें होलकर, सिंधिया, गैकवाद एंड भोसले थे, those were forced to sign the subsidiary treaty. अब ये subsidiary treaty क्या थी? What happened कि कंपनी को अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करनी थी, तो इसके लिए इसने ये ट्रीटी पुटअप की इन फ्रंट ऑफ द रूलर. और इसमें क्या था कि जो रूलर्स थे, द रूलर हु साइंड दिस ट्रीटी हैज टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज किंगडम at his cost. And to meet this cost, either the Indian state would surrender a portion of its territory to the company, or they have to pay an annual amount. अब इससे क्या हुआ कि जो कंपनी ने इनडायरेक्टली यू कैन से कि इन सारी टेरिटरीज पे भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया. And in return the company, what company will do in return? In return the company will protect the states against the any foreign invasion. But बहुत सारी conditions यहाँ पर लगा दी गई रूलर्स के ऊपर. जैसे क्या था कि रूलर्स were expected not to fight or keep any sort of relation with any foreign power without the consent of Britishers. And also they had to break their army, which led that they lost their control over the defense, foreign and domestic policies. And Britishers were successful in maintaining their army in those kingdoms. इस ट्रीटी से क्या हुआ कि जो बेसिकली जो रूलर्स थे वो हैंडीकैप हो गए, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सक्सेसफुली इन सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया. Then comes the expansion from 1818 to 1857. Now what happened? By 1818, the entire subcontinent
except Sindh and Punjab had been brought under British control. सिर्फ सिंध और पंजाब बचा हुआ था. तो क्या हुआ, सिंध एक लॉयल, दो इट वॉज अ लॉयल स्टेट टू ब्रिटिशर्स, स्टिल this state was also annexed in 1843 by an act of betrayal. And now only Punjab was left. जो पंजाब के उस टाइम पे राजा थे, राजा रणजीत सिंह, he was a very good diplomatic person and he was able to control Britishers by establishing a large army. But soon after his death, a civil war broke out in Punjab between his wife, like the queen, and the army. And this was the time that Britishers was waiting for. And they took the full advantage and defeated the army and took Punjab under their control. राजा रणजीत सिंह ने बहुत ही सक्सेसफुली मैनेज किया हुआ था, बट जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन आर्मी एंड हिज वाइफ. और यही एक चांस था जिसका ब्रिटिशर्स वेट कर रहे थे, एंड उन्होंने इस चांस का पूरा एडवांटेज लेते हुए आर्मी को हरा दिया और पंजाब को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. देन कम्स द लॉर्ड डालहाउसीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए था. उन्हें अपने ट्रेड को और भी अच्छे से स्टैब्लिश करना था, और इसलिए वो एक पॉलिसी लाए जो लॉर्ड डालहाउसी ने दी, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 to 1856. And according to this policy, what happened that if an Indian ruler died without having a male heir, then his kingdom would be lapsed and passed to the British government. क्या होगा, अगर कोई इंडियन रूलर बिना अपने वारिस के मर जाएगा तो उसका जो किंगडम होगा वो ऑटोमेटिकली लैप्स होकर ब्रिटिशर्स की अंडर कंट्रोल हो जाएगा. और इस पॉलिसी के अंडर सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी were the states that were annexed under this policy. Finally, in 1856, the company also took over the control of Awadh. अवध के रूलर जो थे वाजिद अली शाह को, उनको ब्रिटिशर्स ने एक्यूज किया ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिस गवर्नेंस, और आफ्टर दिस एक्यूजेशन दे कैप्चर्ड अवध एज वेल. तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने एक तरह से पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से. देन कम्स द एक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए था, और उसने ये देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो गया है. तो अभी तक तो ये प्रॉपरली एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करा, और उसने एक एक्ट पास किया दैट वाज नोन एज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर लाना था, और इसलिए जो एक गवर्नर जनरल बनाए गए और उसकी एक काउंसिल बनाई गई ऑफ 4 मेंबर्स. लेकिन ये जो एक्ट था दैट वाज नॉट वेरी वेल डिफाइंड एंड दैट्स व्हाई इट फेल्ड, because the role of the company was not clearly defined in this act. और इसके बाद दूसरा एक्ट आया दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट. और इस एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक बॉडी बनाई जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिल. उसमें 6 कमिश्नर्स थे इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड जो भी वर्क होता था कंपनी का दैट वाज गाइडेड बाय दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड द गवर्नर जनरल वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस एंटायर कमिटी. उसके बाद क्या हुआ, एक और एक्ट आया दैट वाज द एक्ट ऑफ 1833, जिसमें एक और लॉ मेंबर इस काउंसिल में ऐड कर दिया गया. एंड आफ्टर दैट नाउ द कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. Now comes the topic administrative organization. अब जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था. पहला क्या था, सिविल सर्विसेज.
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ही इस्टेब्लिश द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS इन इंडिया एंड आफ्टर 1853 जो रिक्रूटमेंट था सिविल सर्विसेज का वो स्टार्ट हो गया विद एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट वाज कंडक्टेड इन इंग्लैंड. बट जो इंडियंस थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनके लिए ईजी नहीं था कि वो यहाँ इंडिया से इंग्लैंड जाएं. दैट्स वाई लेटर ऑन ये जो एग्जामिनेशन था दैट वाज हेल्ड इन इंडिया ऑल्सो. लेकिन जो इंडियन बेसिकली होते थे उन्हें हाई पोस्ट पे नहीं रखा जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स knew that they are a threat to their governance. And the first Indian who passed this Indian civil services was Satyendranath. He was the brother of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore who wrote our national anthem. Then what happened? The second was the army. अब army was very important for the protection and extension of British rule in India. That's why British maintained their hold over India with the help of Indian sepoys. जो ब्रिटिश की आर्मी थी बेसिकली उसमें जो सिपाही होते थे वो जो सोल्जर्स होते थे वो बेसिकली इंडियन होते थे और जो हाई पोस्ट पे होते थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे. जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी आर्मी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आप कह सकते हो जो इंडियंस को दी जाती थी दैट वाज ऑफ सूबेदार ओनली. इससे ज्यादा हाई रैंक इंडियंस को नहीं दी जाती थी. देन वो केम दी पुलिस. देन लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रेगुलर पुलिस टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन डिफरेंट एरियाज. ही ऑल्सो डिवाइडेड each district into thanas and each thana was under a daroga. एंड जो विलेजेस थे विलेजेस को बेसिकली जो है आपके चौकीदार्स देखते थे और जो टाउन्स थे उनको कोतवाल्स देखते थे. ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट विच वॉज हेडेड द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होता था जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था. देन कम्स द जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या हुआ कि ये सारी हम लोगों ने पढ़ ली. अब देखना कि ब्रिटिशर्स का जो ये जुडिशियल सिस्टम था ये कैसा था. क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है इंडिया में पहले क्या होता था जैसे अगर हिंदू रूलर्स हैं तो वो बेसिकली शास्त्र फॉलो करते थे और जो मुस्लिम रूलर्स थे वो शरिया फॉलो करते थे. तो उन दोनों शास्त्र और शरिया को कंबाइन करा गया और एज अ गाइड बनाया गया जो कि वहां पे जो जज होंगे जो कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ दैट द फर्स्ट कोर्ट विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1774 एट कैलकाटा. तो इस कोर्ट में जो जज के पैनल थे उनके सामने एक गाइड बनाकर रखा गया. इस दोनों जो लॉज थे दोनों कम्युनिटीज के इन लॉज को कंबाइन फॉर्म करा गया एक बुक बनाई गई और दैट बुक वॉज यूज्ड एज अ गाइड बाय द जजेस ऑफ दिस कोर्ट. और एक दो लॉ भी इंट्रोड्यूस कराए गए. द फर्स्ट लॉ वॉज रूल ऑफ लॉ एंड सेकेंड वॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ. जो रूल ऑफ लॉ था उसमें ये था कि जो भी प्रॉपरली जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं गवर्नमेंट वो सबकी वेलफेयर को लेकर करेगी और अकॉर्डिंग टू अपनी विल किसी में भी इम्पोज नहीं करेगी कुछ भी. एंड सेकेंड वॉज इक्वालिटी ऑफ लॉ. इसमें क्या था कि जितने ह्यूमन बींग्स है ऑल आर इक्वल एंड सबको जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा. बट ये जो दोनों लॉ थे दीज बोथ लॉज वर ओनली फॉर नेम सेक. इनकी कोई एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं होती थी. बट एंड इन रियल प्रैक्टिस होता क्या था कि जो यूरोपियंस होते थे उनके अलग कोर्ट होते थे उनके अलग जज होते थे और उन्हें बहुत ही ईजिली और लाइटली किसी भी ऑफेंस से आराम से उन्हें निकाल दिया जाता था. कोई भी ईजिली उन्हें बरी कर दिया जाता था किसी भी क्राइम से. Then after all these things, the conclusion that came is that the East India Company which came to India basically for a trade purpose. This was a trading company. How this trading company converted into a colonial power. And also with this note your chapter ends here. Please read this chapter properly and thoroughly. It is very lengthy. Also, you have to learn all the important dates, important terms with their meanings and spellings. You can get your notes through School Mitra app. Please download those PDFs and complete your work. Thank you.